we've been taught that being selfish makes you a wrong person, that being selfish or choosing yourself makes you a bad person. But what if I told you that being selfish saved me? Yeah, it saved me. So today we are going to talk about this selfish word, and the reason why I am making this video is because once I was having a conversation with someone, and that person was like explaining me that why you shouldn't be selfish and all. So here, the selfishness that we are going to talk about is the healthy one. अब इसमें क्या आता है कि इसमें वो सेल्फिशनेस आती है जिसमें हम खुद को चूज करते हैं विदाउट हार्मिंग अदर्स. Why I'm talking in Hindi? Because yeah, it is more comfortable because we can reach more audience with that. Okay, because I can speak both. I'm an Indian. Okay, so yeah. Now, so the being selfishness and the selfish thing comes with जब मैं एक पर्सन से बात कर रही थी, and that person was like कि तुमको selfish नहीं होना चाहिए, and why do you have to think about yourself and try being good for others and all. फाइन, वेरी गुड. जब हम किसी के लिए चीज़ें करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है. बट वट इफ आई टॉक दैट व्हेन आई माई सेल्फ चोज टू डू दैट फॉर लाइक मल्टीपल ईयर्स, दैट वॉजंट गुड फॉर मी बिकॉज आई वॉज नॉट चूजिंग माई सेल्फ फर्स्ट. क्योंकि आपको किसी और को देने के लिए पहले खुद के पास वो वैल्यूज होनी चाहिए, पहले खुद के पास वो चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि आप किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें. सिंपल. ओके, तो दिस इज कॉल्ड हेल्दी सेल्फिशनेस, दैट इफ यू डोंट इवन थिंक अबाउट योर सेल्फ, अगर आपके लिए आप नहीं सोच रहे हो तो कौन सोचेगा. ठीक है, व्हाई डू यू हैव टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, राइट. पहली बात तो ये कि choosing yourself without harming others is the exact definition of the selfishness, the healthy selfishness. It doesn't necessarily have to be toxic, that only you is not the thing, but you matters is the thing actually for me. ओके, तो अभी हम बात करते हैं कि हमें इन सेल्फिशनेस से या ये खुद को चूज करने वाली जो चीज़ होती है इससे आपको कितने बेनिफिट्स होते हैं. अब ये मैंने बहुत किया भाई, मैंने बहुत किया. ठीक है, लोगों के लिए करा, बहुत अच्छा बनने की कोशिश करी, एंड दैट वुड बी समवेयर माई नेचर एज वेल. वो नहीं बदलेगा. बट द थिंग इज दैट सबके लिए अच्छा होने में आई वॉज अवॉइडिंग माई सेल्फ, आई वॉज नॉट चूजिंग माई सेल्फ, आई वॉज लाइक आई वॉज इग्नोरिंग माई सेल्फ. आई वॉज कम्प्लीटली, हम किसी के आगे कारपेट की तरह बिछ जाते हैं, तो इस तरह से आई वॉज स्पेंडिंग माई लाइफ. बट देन धीरे धीरे आई हैड टू वेक अप एंड आई हैड टू चूज माई सेल्फ. लाइक इवन व्हेन आई टोल्ड यू द प्रीवियस ईयर द थिंग्स हैपेंड, उन सारी सिचुएशंस ने मुझे यही सिखाया कि सारी चीज़ें चल जाएंगी मेरे बिना, लेकिन मैं नहीं चल पाऊंगी मेरे बिना. आई विल नॉट एग्जिस्ट, आई विल नॉट टेक केयर अबाउट माई सेल्फ. So this was the very first realization that happened to me on this, that you have to choose yourself. अगर हम खुद को चूज नहीं करेंगे तो कौन करेगा, right? So here comes the first and foremost thing is that when you start choosing yourself, you start getting peace in yourself. क्योंकि हम कई बार लोगों की हेल्प करते हैं, बट हमारे अंदर ये स्टॉर्म्स चल रहे होते हैं बड़े बड़े, हम बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं, हमें खुद के बारे में नहीं पता होता है. तो उस टाइम पे क्या होगा, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है. एंड एज बीइंग द पर्सन हु इज अवेयर ऑफ द मेंटल हेल्थ, इट्स लाइक really important thing in our life, that you have to keep your physical and mental health in check in order to work properly, in order to do whatever you want, in order to get the life you want, right? So this is really important. तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही हुआ कि from the time I started choosing myself, I started working on myself, the reflections I did, the shadow works I did, everything, they all helped me in becoming a better person mentally and more stronger. Okay. Second thing comes with the stronger boundaries. Stronger boundaries means that you protect your peace from others. Like कई बार तो ऐसा होता है ना that people can't see you happy as well. That is the toxicity, right? When you are in peace with yourself, you will be having distance, you will maintain distance from such type of people, because when your energies are increasing, when your energies are more positive, जो लोग आपको सच में खुश देखते हैं और खुश होते हैं, आपको पता चल जाता है कहीं ना कहीं, सबके पास इंट्यूशन पावर, और सबको पता चलता है कि किसको मेरी खुशी से अच्छा नहीं फील होता. तो सिंपल थिंग इज मेंटेन द बाउंड्रीज. अब इसमें भी यही आ जाता है कि जब आप खुद को चूज करने लगते हो, उन लोगों से दूर करते हो, तो वो आपको सेल्फिश समझेंगे. तो उसमें गलत क्या है? अगर हम अपने पीस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और हम उन लोगों से दूर होना चाहते हैं, तो उसमें गलत मुझे नहीं लगता कुछ भी है. ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
थर्ड थिंग कम्स विद द इम्प्रूव्ड सेल्फ वर्थ। मतलब हम अपनी वर्थ को इतना कम समझते हैं, हम किसी की लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं हम खुद को नहीं पता होता है। कुछ जब हमारे पास देने के लिए बचेगा ही नहीं किसी को, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, एनीवे, जब हमारे पास बचेगा ही नहीं तो हमारी वर्थ क्या बचेगी? मतलब हमारे अंदर जब कुछ है ही नहीं, हमारा अपना वेसल एम्प्टी है, हम दूसरे को क्या देंगे? तो जब आप खुद को चूज करते हो, बाउंड्रीज बनाते हो, अपने पीस को मेंटेन करते हो और खुद पे ध्यान देना शुरू करते हो, इट्स लाइक यू गेट द पॉइंट। पहले हम किसी और की मेन कैरेक्टर में खुद को साइड कैरेक्टर समझ रहे थे, बट अब मेरी स्टोरी में मैं खुद मेन कैरेक्टर हूँ और बाकी सारे साइड कैरेक्टर हैं। तो खुद सोचो ना, आपका फोकस किस पे जाएगा? अपने आप पे जाएगा। एज बीइंग अ पर्सन जो अपने आप को मेन कैरेक्टर समझेगा वो उसके हिसाब से एक्ट भी करेगा, ठीक है? तो दिस इज द थिंग, हाउ एक चीज को चूज करते आपकी बाकी चीजें इंप्रूव होनी स्टार्ट होती है। और हमेशा आई टेल यू समथिंग, जब भी हम किसी और के लिए करते जाते हमारी बहुत प्रेज होती है, बट द मोमेंट वी विल चूज आवर सेल्फ, द मोमेंट वी विल चूज आवर पीस, वी विल स्टार्ट मेंटेनिंग द बाउंड्रीज, पीपल विल बी लाइक बहुत ईगो है, पीपल विल बी लाइक बहुत सेल्फिश है बंदा, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बट वी डोंट नो द बैक स्टोरी, वी डोंट नो द थिंग्स दैट हैपेंड, ठीक है? तो उस टाइम पे दैट इज द कोर पॉइंट जहाँ पे तुमको खुद को और स्ट्रॉन्गर करने का मौका मिलता है। अगर तुम उस टाइम पे भी ऐसे हो जाते हो ना कि हमको नहीं ये करना ही करना है, एंड आई एम स्टैंडिंग फॉर माई सेल्फ, फॉर माई दैट इनर चाइल्ड दैट नीडेड मी, राइट? तो उस टाइम से आपकी चीज़ें सुधरनी स्टार्ट हो जाती है, एंड दैट आई हैव सीन माई सेल्फ, ओके? नेक्स्ट थिंग इज दैट नाउ, अब आपने स्ट्रॉन्गर बाउंड्रीज बना ली, उसके बाद क्या होगा कि जो पीपल जेन्युइनली आपसे हैप्पी होंगे वो आपके इस बिहेवियर को समझेंगे और उसको पॉजिटिवली लेंगे। दे विल सी कि हाँ बंदा खुद की ग्रोथ कर रहा है, खुद की ग्रोथ करेगा तो उनको भी तो उसमें बेनिफिट होगा ना, ठीक है? बेनिफिट नहीं होगा तो चलो एटलीस्ट पीपल विल बी हैप्पी सीइंग यू ग्रोइंग, ऑब्वियसली, ओके? तो जो रिलेशनशिप्स हैं वो हेल्दियर हो जाएंगे, बिकॉज देयर इज नो सच एज जेलस, there is no such as comparisons, everyone's in their own journey, everyone has different journey, different stories, different timelines, very simple। कोई 50 का है, कोई 5 का है, सबकी लाइफ अलग चल रही है ना, सबकी सिचुएशंस अलग है। तो मुझे कंपैरिजन वाली चीज तो कभी अच्छी लगी ही नहीं और ना कभी लगेगी, क्योंकि हम कंपेयर नहीं कर सकते। इवन सेम फैमिली में, सेम पेरेंटहुड में रहने वाले 2 बच्चे भी कंपेयर नहीं किए जा सकते, क्योंकि एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, वन विल बी एल्डर वन, वन विल बी यंगर वन, ओके? तो हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो उससे सुधरने लग जाते हैं, एंड वी एक्चुअली स्टार्ट सीइंग पीपल एज पीपल, ओके? हम उनको वो नहीं समझते कि बस ये हमारे वो होते जाएंगे कि हम इसमें डालते जाएंगे ना। रिलेशनशिप इज ऑलवेज गिव एंड टेक, एंड दैट शुड बी म्यूचुअल। ना तो आप सिर्फ देते जाओ, ना तो आप सिर्फ लेते जाओ, ओके? नेक्स्ट कम्स विद द पर्सनल ग्रोथ। अब जब आपके पास पीपल, बहुत चीज़ें सॉर्टेड हो गई, ऐसा होता है ना जब एक रूम में बहुत कुछ फैला हो तो आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या किया जाए। व्हेन यू हैव स्टार्टेड, जब आपने चीज़ें समेटनी शुरू करी तो आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, बिकॉज यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि ओके आई हैव टू डू दिस इन ऑर्डर टू डू दिस। यू विल स्टार्ट गेटिंग द स्टेप्स, यू विल स्टार्ट सॉल्विंग द थिंग्स इन योर हेड। जो स्टॉर्म्स आपके अंदर चल रहे थे, ट्रस्ट मी मेरे अंदर बहुत स्टॉर्म्स चलते थे, बहुत ज़्यादा। दे हैव सम एक्सटेंट काम डाउन, because now I have figured out a lot of things that I don't have to be like dependent on anyone, okay? पर्सनल ग्रोथ में फिर आप सोचोगे कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ करनी है, बिकॉज यू आर बीइंग द मेन कैरेक्टर नाउ। तो मेन कैरेक्टर की तरह आप बिहेव करोगे कि मुझे खुद पे ग्रोथ करनी है, मुझे बुक्स रीड करनी है, मुझे अपना वर्कआउट करना है, मुझे अपना हेल्दी खाना खाना है, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है? देन कम्स टू दिस, इसके बाद आता है एक ऐसा फेज जो मेरे साथ भी और कई बार होता है, जब आप लोगों को और टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से हटाने लगते हो तो ये होता है कि यू स्टार्ट गेटिंग लेस पीपल, क्वालिटी पीपल, ठीक है? पहले तो आपको हर कोई समझेगा नहीं, लेकिन जब समझना स्टार्ट होगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू विल ग्रो, तो आपकी ग्रोथ तो सब देखेंगे ना यार, ठीक है? तो उस टाइम पे आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो चुके होगे, बिकॉज यू वॉन्ट डिपेंड ऑन एनी वन। ऐसे फेसेस में कई बार आपको अकेले भी रहना पड़ता है, बट उस टाइम में दैट्स द बेस्ट टाइम जब आप खुद के लिए रिफ्लेक्ट कर सकते हो, खुद पे फोकस कर सकते हो, ठीक है? दैट इज द थिंग, इंडिपेंडेंस आ जाती है। यू डोंट डिपेंड ऑन एनीवन, यू आर लाइक ओके मैन, ओके आई एम माई सेल्फ, आई एम देयर फॉर माई सेल्फ। एंड जब मैं खुद के साथ खड़ा हूँ तो मुझे किसी की ऐसे पर्टिकुलरली नीड नहीं होती है, और नीड हमें किसी की नहीं होती लाइफ में, किसी की नहीं। इट्स लाइक एवरीवन्स लिविंग देयर ओन लाइफ, एवरीवन्स द, सबकी स्टोरी, सबकी टाइमलाइन चल रही है। तो हम इंडिपेंडेंट होना शुरू करते हैं, हम अपने इमोशंस का कंट्रोल किसी और को नहीं देते, खुद के पास रखते हैं, ठीक है? एंड
इसके बाद आता है सबसे बड़ा पॉइंट दैट कम्स विद दिस चूजिंग योर सेल्फ थिंग एंड बीइंग सेल्फिश, हेल्दी सेल्फिश, इज ब्रेकिंग अनहेल्दी साइकिल्स. लाइक ओ माई गॉड, दिस इज द मोस्ट important thing. Like, the moment you start changing, the moment you grow, you break the cycles, the unhealthy cycles, because the unhealthy things are not now in your life anymore. You are more stronger, more wiser, more intelligent, and more independent. Okay, the unhealthy cycles of only like giving and giving and giving, the only like you have to only provide and provide and provide and provide, that will break. The previous years and years, लोगों को सालों लग जाते हैं ये बात समझने में, ये लेसन सीखने में कि भाई हम इस लाइफ में अकेले आए हैं और अकेले ही जिएंगे. कई लोगों को तो इससे बहुत ज़्यादा ट्रिगर होने लग जाता है, बिकॉज अगर ऐसा ना होता तो वाई आई विल टेक बर्थ ओनली मी एंड नॉट विद एनीवन एल्स. हर कोई इंसान अकेले ही आता है, अकेले ही जाता है, एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ द लाइफ. द मोमेंट वी एक्सेप्ट दिस थिंग, द मोमेंट वी स्टार्ट रियलाइजिंग कि हम गलत कहाँ थे, द मोमेंट कि हाँ हम इन टॉक्सिक पैटर्न्स में फंसे हुए थे कि कोई हमसे सिर्फ लिए जा रहा था, ठीक है, किसी को हम कॉन्टिन्यूसली समझाए जा रहे हैं, वो समझ नहीं रहा है, वो हमारी वैल्यू नहीं लगा रहा है. तो ये सारे ऐसे साइकिल्स होते हैं क्योंकि हम उससे बहुत इमोशनली अटैच होते हैं, तो हम उससे ब्रेक फ्री नहीं कर पाते. बट द मोमेंट यू डू दैट, यू ब्रेक द अनहेल्दी साइकिल्स. ठीक है, boundaries, that is really important in like this way. And yeah, this was all the benefits that came to me. And then so in the end I would be saying, completing it with that, if choosing yourself makes you selfish, be selfish, because the world doesn't need more burnt out people. Actually, genuinely, world doesn't need more burnt out people. अब लोगों को हेल्दी पीपल चाहिए. और दिस जनरेशन इज द बिगेस्ट जनरेशन, द जेन ज़ी जनरेशन, दैट इज ब्रेकिंग द ईयर्स ऑफ साइकिल्स जो पीछे से पास्ट ट्रॉमास चले आ रहे थे. वी चूज दैट वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट, वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट टू अदर जनरेशन एज वेल. हम उन पे ट्रॉमास डंप नहीं करने वाले, क्योंकि हम खुद को हील करना जानते हैं. जानते नहीं है तो एटलीस्ट ये समझते हैं कि हमको ज़रूरत है हीलिंग की. हम ये समझते हैं कि मेंटल हेल्थ एक चीज़ होती है. हम ये समझते हैं कि हेल्दियर लाइफ स्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो वी नीड द होल पीपल जिसमें एक्चुअल में वैल्यू हो, जो एक्चुअली अपने इन्वायरमेंट को समझे, जो एक्चुअली चीज़ों को समझ पाए. ठीक है, तो आई एम एंडिंग इट विद द लाइन दैट यू आर नॉट सेल्फिश फॉर चूजिंग योर सेल्फ, यू आर ब्रेव. Okay, you are brave. So if you like the comment, if you like the content of the video and channel, please like, share and subscribe and show some love. और मेरे को बताना कि आपने comment में कि आपने कौन से ऐसे स्टेप लिए या कौन सा एक स्टेप आज से ही लेना शुरू करा कि now you are being brave and you are choosing yourself. Comment down. Thank you. Bye bye. Take care.